أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 5 کلاسز کے اندر ہم الحمدللہ بنیادی چیزیں بہت ساری ہم نے سیکھے، جس میں سے 2 اہم چیزیں ہم نے سیکھے تھے۔ سب سے پہلی کہ اسم کی پہچان کرنا، اسم کو پہچاننے کی 4 نشانیاں ہم نے دیکھے۔ وہ کون کون سی نشانیاں ہیں؟ 4 بتائیے آپ لوگ، اسم جس کے ذریعے سے اسم پہچانا جاتا۔ سب سے پہلا الف لام سر، الف لام، آخری حرف پہ تنوین پیج سے شروع ہوگا اور تا مربوطہ سے اینڈ ہوگا۔ 2 پیش، یہ 4 نشانیاں ہیں اسم کو پہچاننے کی۔ اور اسم آیا کہاں سے؟ کلمے کی قسموں میں ہے اسم۔ سب سے پہلا کلمہ، کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، جس میں سے اسم کو پہچاننے کی یہ 4 نشانیاں ہم لوگوں نے الحمدللہ دیکھ لیے۔ شروعات میں الف لام، اگر کوئی لفظ میم پیش منہ سے شروعات ہو رہی تو وہ بھی اسم، تا مربوطہ یا گولتا لاسٹ میں اگر لگا ہوا ہے تو وہ بھی اسم ہے، اور اگر تنوین اگر آ گئے کسی بھی لفظ پہ تو وہ بھی اسم ہے۔ تو ان 4 نشانیوں کے ذریعے سے اسم پہچانا جاتا، جس کے لیے آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا کہ قرآن کے اندر سے دیکھنا ہے، جو بھی ہم سورہ، جو بھی پارہ ہم تلاوت کرتے اس کے اندر سے اسم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، یا تو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے یا پھر وہیں پہ اس کو نشانی لگانا ہے کہ یہ اسم ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے ہوم ورک کیے، اور ایک صاحب نے الحمدللہ بھیجے بھی تھے، میں نے گروپ میں ان کا ہوم ورک، جو سورہ ملک کے اندر سے جو اسما انہوں نے نکال کے اپنی نوٹ بک میں لکھے تھے اور پھر بھیجے تھے، میں نے وہ گروپ کے اندر بھیج دیا، شاید آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی یہ ہوم ورک کرتے چلنا ہے، ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو پڑھنا ہے، ایک ایک چیز پڑھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز جو بہت اہم ہم نے دیکھے وہ اسم کی پہچان، اور دوسری ہم نے دیکھے حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع، یعنی کہ ایک ایسا حرف علت، حرف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو اور یا، جس میں سے الف جو ہے وہ زیادہ بیمار ہے۔ الف کے اندر 2 حروف چھپے ہوئے ہیں، ایک ہے حمزۃ الوصل اور دوسرا ہے حمزۃ القطع۔ اب حمزۃ الوصل، حمزۃ القطع اور الف، تینوں میں فرق کیا ہے؟ کون بتائیں گے کیا فرق ہے یہ تینوں میں؟ حمزۃ الوصل جو ہے جی، بغیر حرکت کے آتا ہے اور شروع میں آتا ہے، بغیر حرکت کے آتا اور کسی بھی لفظ کے شروع میں آتا ہے، شروع میں آتا۔ اور حمزۃ القطع جو ہے اگر حرکت ہوتی ہے تو بوٹ شیپ سواد کی، حمزۃ القطع کہیں بھی آ سکتا، کہیں بھی آ سکتا، کہیں بھی، شروع میں بھی آ سکتا، بیچ میں بھی آتا ہے، آخر میں، درمیان میں بھی آ سکتا اور آخر میں بھی آ سکتا، کہیں بھی آ سکتا۔ اور یہ اس کی کیا نشانی ہے؟ یہ ہمیشہ اپنی حرکت لے کر آتا۔ تو یہ ہو گیا حمزۃ القطع۔ اب بچا تیسرا ہے الف، اس کی پہچان وہ شروع میں آتا ہے یا بیچ میں آتا ہے؟ شروع میں کبھی نہیں آتا، درمیان میں اور آخر میں آتا۔ حمزۃ الوصل صرف شروع میں آتا، بعد میں نہیں آتا۔ یہ دونوں میں فرق صرف سمجھنا ہے ہم کو، الف میں اور حمزۃ الوصل میں۔ حمزۃ القطع کو پہچاننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہمیشہ حرکت آ جاتی۔ بس یہ دونوں میں فرق کرنا ہے، حمزۃ الوصل میں اور الف کے اندر۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حمزۃ الوصل کسی بھی لفظ کے ہمیشہ شروعات میں آتا، درمیان میں یا آخر میں کبھی بھی نہیں آتا۔ الف شروعات میں کبھی نہیں آتا، درمیان میں یا
आखिर में आता। तो बाद में अगर कहीं दिख जाए तो वो उसको अलिफ बोलेंगे, और शुरुआत में अगर नजर आ जाए तो हमजतुल वस्ल बोलेंगे। तो ये दो बहुत अहम टॉपिक हमने पढ़े, जो ये याद रखने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो इसका भी हमने होमवर्क दिए थे कि कुरान के अंदर से आपको ढूंढ के निकालना है, किसी भी लफ्ज को निकालो, लिखो, और उसमें से ढूंढो कि हमजतुल वस्ल है, अलिफ है, क्या कता है। तो क्या आप लोगों ने किए होमवर्क, मश्क किए, प्रैक्टिस किए, क्या नहीं किए? काय बेटा नहीं किए? अगर किए तो किए बोलो, नहीं किए तो नहीं बोलो। डरना बिल्कुल भी नहीं है, हमको एंजॉय करते हुए पढ़ना है। नहीं किया कुरान में। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नहीं बोलने से डरना नहीं कभी भी कि नहीं किए, राइट। चलिए, लेकिन समझ में तो आया ना? आ गया। अगर कोई भी लफ्ज पे आप देख के पहचान सकते कि ये हमजतुल खता है, अलिफ है या वस्ल है। अगर जुमले के अंदर एक पूरा जुमला लिखा हुआ है तो आप इसम को पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वालों से भी सवाल है, कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप लोगों का ये नहीं बोलना, इसमें कोई शिकायत नहीं है। अगर नहीं आता तो फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी होता। तो अगर जब भी सवाल किया जाए तो किए तो आपने बोलना हाँ किए, नहीं किए तो आपने बोलेंगे नहीं किए। डरना बिल्कुल भी नहीं है। साथ में मिलके हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो यहां तक था हमारा दो अहम सबक। अब इसके बाद शुरुआत से हम एक मर्तबा फिर रिपीट करेंगे। सबसे पहला, अरबी जुबान का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा जुज, वो क्या कहलाता, क्या नाम है उसका? हर्फ है सर, हर्फ है। सबसे छोटा हिस्सा हर्फ है, और हर्फ की जमा हुरूफ। हुरूफ अरबी जुबान के अंदर कितने हैं? 28। इन 28 हुरूफ को सबसे पहले तजवीद के मुताबिक दो हिस्सों में तकसीम किया गया। वो कौन से है? और हुरूफ शम्सिया। शम्सिया और अल कमरिया। तो हुरूफ शम्सिया कितने हैं? 14। कमरिया 14। अब इसके बाद ग्रामर के एतबार से फिर इन हुरूफ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। वो कौन से? हरफे इल्लत और हरफे सही। हरफे इल्लत और हरफे सही। हरफे इल्लत कितने हैं? 3 है। कौन से? अलीफ, वाव और या। और हरफे सही जो बाकी के पूरे 25 हुरूफ है, 25 वो हरफे सही है। ये हो गया। अब इसके बाद एक और हर्फ ऐसा है जो ग्रामर के अंदर हमारे काम में आने वाला है। वो कौन सा हर्फ है? हमजा। बोलता, ता मरबूता। बोलता या ता मरबूता। ता मरबूता का इस्तेमाल क्या है? हाँ, किसी भी मुजक्कर लफ्ज को, मुजक्कर इस्म को मुअन्नस में बनाने के लिए गोलता का इस्तेमाल किया जाता। जैसे मुस्लिमुन है तो गोलता लगा के मुस्लिमतुन, तो ये हो जाता मुअन्नस। और इसका बनाने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा? गोलता, ता मरबूता का इस्तेमाल। तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा हुरूफ का। और ये 28 हुरूफ को अरबी जुबान के अंदर, ग्रामर के अंदर इसको बोलते हैं हुरूफ हिज्जा। क्या बोलेंगे? हुरूफ
हिज्जा, हिज्जा, हरूफ हिज्जा, हरूफ है हिज्जा। ये हो गया पूरा हरूफ के मामले में। अब जुबान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, कलाम की तरफ, स्पीच, बात करना, कलाम यानी बात। अब कलाम की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अब यहां से इसकी बुनियाद शुरू होती ग्रामर की, ठीक है। जुबान से निकलने वाली आवाज लफ्ज कहलाती, क्या कहलाती? लफ्ज कहलाती। और वो लफ्ज बनता किसके जरिए से? ये हरूफ हरूफ के जरिए से। इन्हीं हरूफ के जरिए से वो लफ्ज बनाया जाता, बनता। तो सबसे पहले जुबान से निकलने वाली आवाज को क्या बोलेंगे? लफ्ज। और लफ्ज जो है वो दो किस्म का है, बेमायने बामायने। बामायने और बेमायने, यानी कि मीनिंगफुल और दूसरा मीनिंगलेस। बामायने और बेमान, बे मायने। बामायने यानी कि मीनिंगफुल और बेमायने यानी कि मीनिंगलेस। तो हम पढ़ने वाले हैं पूरे के पूरे बामन, बामायने लफ्ज। और लफ्ज की जमा क्या है? अल्फाज, अल्फाज। जैसा हर्फ की जमा हुरूफ है, उसी तरीके से लफ्ज की जमा है अल्फाज, अल्फाज। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर आपने याद रखे तो आखिरी तक काम में आने वाले हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। लफ्ज की जमा अल्फाज है। तो लफ्ज दो किस्म का होता, एक बामायने और दूसरा बेमायने। बामायने लफ्ज को अरबी जुबान के अंदर क्या बोलेंगे? कलीमा, कलीमा। कलीमा ये ता मरबूता के साथ है, कलीमा, ठीक है। अब कलीमे की तीन किस्में हैं, कौन सी कौन सी? इस्म, फेल फेल और हर्फ, और हर्फ, हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ। इस्म यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे नाउन, फेल यानी कि वर्ब और हर्फ यानी कि पार्टिकल्स। तो इस्म, फेल और हर्फ ये किसकी किस्में हैं? कलीमे की। कलीमा, अब इस्म के बारे में सबसे पहले हम ये तीन चीजों में से हम पढ़ रहे थे इस्म के मुतालिक, इस्म के बारे में। तो इस्म की पहचान फिर से एक मर्तबा रिपीट करेंगे कि इस्म की पहचान क्या है? शुरुआत में अलिफ लाम या फिर मीम पेश मुंह, उसके बाद लास्ट में तनवीन या फिर लास्ट में गोलता ता मरबूता। ये चार निशानियां इस्म की है, इसी के जरिए से इस्म पहचाना जाता। तो ये हो गया इस्म के बारे में। अब इस्म के बारे में हमने सबसे पहले उसकी कर ली पहचान, राइट। अब चार निशानियां जो हम देख रहे कि शुरुआत में अलिफ लाम आ रहा, फिर मीम पेश मुंह भी आ रहा, तनवीन भी आ रहा और ता मरबूता भी आ रहा। तो ये चार निशानियों में से दो निशानियां ऐसी है जो हमारे आगे का सबक पढ़ने में हमारी मदद करने वाली है। वो दो निशानियां हैं, एक अलिफ लाम और दूसरा है तनवीन। अलिफ लाम और तनवीन यानी कि दो जबर दो जेर दो पेश। तनवीन यानी कि दो जबर दो जेर और दो पेश। और एक मर्तबा फिर हम रिपीट करेंगे कि ये दो जबर दो जेर दो पेश पढ़ते वक्त इनके पीछे नून की आवाज आती, इनके पढ़ने में नून की आवाज आती। इस वजह से इनके पीछे एक हर्फ छुपा हुआ है। वो कौन सा हर्फ है? नून साकिन। ये साकिन यहां पे खाली लिखा, नून के ऊपर अगर ये जज़म दे दिए तो इन्हें खुद ब खुद साकिन हो जाता। तो तनवीन के पीछे कौन छुपा हुआ है? नून साकिन छुपा हुआ है। तो ये जो दो निशानियां हैं, एक अलिफ लाम और दूसरा तनवीन, ये इस्म की निशानी भी है। लेकिन ये एक ऐसी निशानी है, ये दो ऐसे निशानियां हैं जो एक साथ कभी भी नहीं आते। आपने गौर किए होंगे
जी या तो किताबुन होगा या फिर अल किताबु होगा, या तो कुरानुन होगा या अल कुरानु होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में एक साथ एक लफ्ज में कभी नहीं आते। कुरान में सूरह बकरा की शुरुआत की आयतों में एक ऐसा लफ्ज है अल मुफलिहूना, उलाइका हुमुल मुफलिहूना। और अल किताबु, ये सबसे पहले है जालिकल किताबु। और अगर हम तनवीन वाला कोई इसम लेंगे, ये जो इसम को तनवीन वाला बना देंगे, किताबुन, तो यहां पे तनवीन है और यहां पे अलिफ लाम है, तो ये दोनों आपस में कभी भी एक साथ नहीं आते, ये भी याद रखना है। अल किताबुन नहीं हो सकता, ये अगर अल शुरुआत में लग गया तो तनवीन का एक पेश गायब हो जाता। अगर दो जबर है तो एक जबर गायब हो जाता, दो जेर है तो एक जेर गायब हो जाता। तो बोलने का मकसद यह है कि ये अलिफ लाम और तनवीन कभी भी एक लफ्ज पे एक साथ नहीं आते। अब उसकी वजह क्या है? सवाल यह है कि एक साथ क्यों नहीं आते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कोई भी इस्म, ठीक है, पहले तो हमने उसकी पहचान कर लिए, और दूसरा उसकी वुसात के एतबार से, यानी कि उसके वजन के एतबार से इस्म की दो किस्में होती, एक रहता मारिफा और दूसरा है नकीरा। मारिफा यानी कि एक ऐसा इस्म जिसको मैं जानता, और नकीरा यानी कि एक ऐसा इस्म जिसको मैं नहीं जानता। तो यही है, अलिफ लाम अगर शुरुआत में है तो यह हो जाता मारिफा, और अगर तनवीन है तो नकीरा यह बन जाता नकीरा। अल किताबु मारिफा, किताबुन नकीरा। तो ये दोनों आपस में एक साथ कभी नहीं आते। इसकी वजह क्या है? अगर अलिफ लाम किसी लफ्ज पे है, किसी इस्म पे है, तो वह मारिफा हो जाता, वो डेफिनेट हो जाता, और अगर तनवीन किसी इस्म पे है तो इनडेफिनेट हो जाता। ये दोनों आपस में एक साथ कभी नहीं आते। अल किताबुन नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? ये दोनों हमेशा अलग अलग आते, और अलग अलग आने की वजह क्या है? इस्म की वुसात को तब्दील कर देना। अगर अलिफ लाम है तो वो मारिफा बना दे रहा, और अगर तनवीन है तो वो नकीरा बना दे रहा। बस यही है आज का हमारा सबक। अब सबसे अहम बात अब यह है, इस्म के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि इस्म की पहचान चार निशानियों से हो जा रही। अलिफ लाम आया तो मारिफा है, तनवीन आया तो नकीरा है। अब मेन हमको देखना यह है कि इस्म यानी क्या, इस्म की, नाउन की कैटेगरी में आने वाले कौन सी चीजें हैं। इस्म, सबसे पहले जैसा सवाल किया जाता है कि इस्म यानी क्या, हम बोलते किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम। ये हर जुबान के अंदर आते। अरबी जुबान के अंदर कितने आते वो हमें आज देख लेंगे इंशाल्लाह। तो इस्म यानी नाम नाम। अब नाम अरबी जुबान के अंदर, इस्म के अंदर कौन सी चीजें आती? सबसे पहला आता किसी शख्स का नाम, पर्सन, जी ठीक है, किसी शख्स का नाम। अब किसी शख्स का नाम के लिए हम क्या करेंगे, उसका नाम लेके मिसाल के तौर पे लिख लेंगे। तो सबसे पहला नाम हम लिखेंगे दादा का, आदम। आदम, तो ये होगा किसी शख्स का नाम। उसके बाद आता किसी जगह का नाम, मक्का। मक्का, ये हो गई जगह, प्लेस। अब तीसरा आता किसी चीज का नाम, कलम
अल कुर्सिय्यु। तो पहले हो गया किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम। अब चौथा याद है? सिफत का नाम, किसी काम का नाम, किसी काम का नाम। खाना, खाना, काम बोले कि सबसे पहले खाना चाहता, दूसरे भी काम है, पढ़ना है, वो खाए तक तो आगे का कुछ भी नहीं आता ना सर। ये भी सही है। किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी काम का नाम, और चौथा और आखिरी है सिफत का नाम। सिफत का नाम। पांचवा है, पांचवा, सॉरी, और रहीमो। रहीमो के मायने हैं रहम करने वाला। तो किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी काम का नाम, और आखिरी में सिफत का नाम, क्वालिटी। तो ये 5 चीजें हैं जो इस्म की कैटेगरी में आती। ये 5 चीजें हैं जो इस्म बन सकते, ठीक है। अब यही 5 चीजों में हमको वो निशानियां ढूंढना है। जैसा ही निशानी मिल गई किसी लफ्ज के ऊपर, इस्म की 4 निशानियों में से कोई भी निशानी अगर मिल जाती है तो उसके बाद सबसे पहले हमारे जहन में यह आना चाहिए कि ये किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी चीज का नाम है, किसी काम का नाम है, या फिर किसी की सिफत है। ये 5 चीजें इस्म को पहचानने के बाद जहन में आना चाहिए हमारे, राइट। तो यही आज का हमारा सबक है। कोई सवाल, कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छा समझ में कहीं भी किसी भी आयत में अगर हम पढ़ रहे सूरह फातिहा, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब यहां पे अगर हमको इस्म की तलाश करना है तो सबसे पहले अल्हम्दु, राइट। अब अल्हम्दु आ गया तो शुरुआत में अलिफ लाम आ गया, तो ये इस्म हो गया। लिल्लाहि अल्लाह का नाम है, रब्बिल आलमीन तो रब को छोड़ दो, अल आलमीन अलिफ लाम के साथ है तो ये इस्म है। निशानी क्या है? अलिफ लाम। शुरुआत में अल्हम्दु की निशानी क्या है? अलिफ लाम। तो ये 2 इस्म है। तो अब हमारे जहन में ये चीज आना कि ये नाम किसका है, ये कौन सी कैटेगरी में आता? किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी काम का नाम है, या फिर कोई सिफत है। तो अल्हम्दु सिफत, तारीफ, और उसके नहीं, अल्हम्दु काम का नाम है, तारीफ, और फिर आलमीन जगह। तो ऐसा हमारे जहन में आना चाहिए। कोई अगर हम दूसरी आयत पढ़ रहे, कुलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना व मा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात। अब ये जो नाम आ रहे हैं, तो नाम हमने पहचान लिए, तो फिर अब ये देखना है कि ये नाम क्या है, किसी शख्स का नाम है, जगह का नाम है, या कोई सिफत है। ये चीज हमको ढूंढना है। तो इस्म की कैटेगरी में आने वाले ये तमाम चीजें हैं, और इन तमाम चीजों के अंदर ये किसी का नाम है तो यहां पे अलिफ लाम, तनवीन भी आ सकता। किसी जगह का नाम अलिफ लाम और तनवीन भी आ सकता। किसी चीज का नाम है तो अलिफ लाम और तनवीन भी आ सकता। किसी काम का नाम है तो अलिफ लाम और तनवीन भी आ सकता। किसी सिफत का नाम है, अलिफ लाम और तनवीन भी आ सकता। तो जहां भी इस्म के बारे में हमारे जहन में आया कि ये इस्म है, तो इस्म के अंदर आने वाली 4 चीजें, 5 चीजें ये है। या तो वो किसी शख्स का नाम हो सकता, या किसी जगह का नाम, या किसी चीज का नाम, या किसी काम का नाम, या फिर किसी की सिफत। यही है हमारा आज का सबक। तो कोई भी डाउट है, अगर कोई सवाल है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर आदमों में कोई निशाने नहीं मिलते ना सर? आदमों के अंदर कोई निशानियां नहीं मिलते, इसी वजह से मैंने यहाँ पे शुरुआत में अलिफ लाम नहीं लिखा, राइट। इसी वजह से यहाँ पे अलिफ लाम नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ और सिर्फ तनवीन। अब इससे पहले की स्लाइड बताओ ना। ये वाली नहीं, इससे पहले ये वाली नहीं, इससे अव्वल है। देखो थोड़ा ज्यादा इसका इसके खुलासा पहले करो। कुछ भी नहीं है, नहीं है? ये हाँ, ये बाद में बताएंगे इंशाल्लाह आगे की क्लास में। जब हम मारिफा नकीरा को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम उस वक्त में आपका वो जो सवाल है वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, क्या आदमों के ऊपर अलिफ लाम और तनवीन क्यों नहीं आया। और अगर आप ये भी अगर गौर करते हैं कि उसके बाद वाला जो है किसी जगह का नाम है, वहां पे भी मैंने लिखा मक्कतू, तो वहां भी ना अलिफ लाम है और ना तनवीन है, तो तामरबुता तो इसम की निशानी है ना, इसम की निशानी है। तो इंशाल्लाह हम आगे जब मारिफा नकीरा को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब हमारा वो सबक आएगा तो तब इंशाल्लाह उसको डिटेल में बताया जाएगा। अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जी, तो चलिए कोई सवाल नहीं, आज यहाँ पे रुकेंगे इंशाल्लाह। कल फिर 9 बजे नए सबक के साथ नई शुरुआत। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हुर्फ और हुरूफ नहीं रखो। ये तो ये बहुत काम की चीज है तुम्हारे। मदर सर